Hello everyone, welcome to the part 2 of our prelims 2024 paper discussion. So in the previous video we have discussed from question number 1 to question number 25. So in this video we'll cover question number 26 to question number 50. Okay, now coming to question number 26. Who of the following is the author of the books The India Way and Why Bharat Matters? Now Why Bharat Matters is a very popular book जो कि आजकल न्यूज़ में भी जयशंकर बहुत न्यूज़ में है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, से उन्हीं का बुक है. सो द आंसर इज सुब्रमण्यम जयशंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Now question 27 is like we have to match the pairs. This is the country, why they are in news. Now here Argentina, the reason is worst economic crisis. Sudan, वॉर बिटवीन कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पारामिलिट्री फोर्सेस, ये तो बहुत न्यूज़ में है, तो ये तो सही है. तुर्की रिसेंटेड इट्स मेंबरशिप एट नेटो, नेटो से वो बाहर आ गए, नहीं, नेटो से बाहर नहीं आए हैं. सो देखिए द पॉइंट इज बहुत सारे कंट्रीज दे यूजुअली गिव स्टेटमेंट्स कि हम आ जाएंगे, बाहर से हो जाएंगे, बट अभी तक नहीं हुआ है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड अर्जेंटीना में कोई वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ है, क्राइसिस होता रहता है, बट द पॉइंट इज वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ है. सो द आंसर इज ओनली वन पेयर, दैट इज दिस वन इज करेक्ट. Now coming to the next question, question number 28. There are two statements. One statement is assumed pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe. Okay. Second statement, assumed pipeline connects the Red Sea and Mediterranean Sea. नाउ ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है. जो गैस पाइपलाइंस वर्ल्ड में रहते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन आया है. मिड लेवल क्वेश्चन है, इजी भी नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि उस एरिया का एक पाइपलाइन के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा. इट्स नॉट एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बाय द वे. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बाय द वे. assumed it is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe. Second statement is assumed pipeline connects Red Sea with Mediterranean Sea. Now the question, ठीक है, दो स्टेटमेंट सही है. नाउ वी हैव टू सी कि वेदर द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सो हियर, so if you see the assumed pipeline, so it is from the Gulf of Suez to the offshore city career Alexandria, यहाँ से ओके, यहाँ से लेके मेडिटेरेनियन सी इजिप्ट तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है. ठीक है. सो कहीं ना कहीं ये एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड करता है टू द सुएज कैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू मेडिटेरेनियन. ओके. सो यहां पे इफ वी सी, so if you see the statement, because it is a strategic route, the point is it connects Red Sea to Mediterranean Sea. because ये Red Sea और Mediterranean Sea से कनेक्ट करता है, जो हमने अभी मैप में देखा, so that is the reason ये एक स्ट्रेटेजिक रूट बन जाता है यूरोप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. जितना भी नेचुरल गैस और ऑयल का शिपमेंट जाता है, तो बहुत जनरल बात है, बिकॉज ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ स्ट्रेटेजिक रूट. So statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains statement 1. Okay, ठीक है. One more question on Red Sea. ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है. Red Sea receives very little precipitation in any form. थोड़ा बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल रेड सी में रेनफॉल बहुत कम होता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं. एंड नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स. दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट स्टेटमेंट विच इज ट्रू. फाइन. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Now this question is a unexpected question. Now the question is not like the data, they are asking the data from US. So the question is according to Environmental Protection Agency. Now this agency is not an Indian agency, it is a US agency. So question पूछा गया है कि according to this US agency, this agency came in 1970. Which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? Now these kind of questions should not be attempted if you do not know, because here everywhere you will see fossil fuels. Okay, 3 options are on fossil fuels. So यहाँ पे भी fossil fuel, यहाँ पे भी fossil fuel, यहाँ पे भी fossil fuel. Now the question is the largest source of sulfur dioxide. Now according to EPA,
आई ऑल्सो डिड नॉट न्यू द आंसर बट आई चेक्ड इट. सो इनके जो साइट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस का साइट है, 1970 का साइट है, 1970 से ये एजेंसी बना है. सो दे आर टेलिंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस आर पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड बिकॉज वी डू नॉट नो, बिकॉज the data is not Indian data, it is from a US data. Now they have asked the questions, maybe it is a trap questions whether you, because आप अगर यहाँ पे fossil fuel देखेंगे so कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग भी लगाओगे. Mostly people will go with power plants, but still then these kind of questions are also asked, so maybe these are all trap questions which should be avoided. Fine, next 31 question. Now it's a economic concept related question. Okay, as I always say, some concept related questions will be coming from economy. Now let us see the statement. The statement is if USA were to default on its debt, holders of US treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payments. Now यहाँ पे बस US के जगह अगर आप इंडिया ले लो, कॉन्सेप्ट सेम है, बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है. नाउ इफ यूएस बॉन्ड देता है, आपने अगर बॉन्ड खरीदा है, ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड आपने खरीदा है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड एक फेथ के हिसाब से होता है, राइट, वेरी लो रिस्क. नाउ द क्वेश्चन इज इफ द गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो जाता है, तो जो लोग बॉन्ड लिए हैं, फिर इन्वेस्ट किए हैं बॉन्ड में, क्या उनको उनका जो एक्सरसाइज है क्लेम करने का, क्योंकि सरकार डेप्ट चला गया है, क्या उनको वो एक्सरसाइज नहीं होगा? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स. दे कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम्स, दे कैन गो टू कोर्ट भी एक ऑप्शन है, वो जा सकते हैं वहां पे. वैसे तो लो रिस्क रहता है, गवर्नमेंट विल ट्राई टू गिव द मनी, लेकिन फिर भी एक क्लेम जो होता है, जो एक्सरसाइज करने का इंडिविजुअल राइट जो होता है, वो तो रहेगा ही, वो कहाँ जाएगा? तो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, सो अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वहां से हमको पता चल गया पहले दिस टू स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, बिकॉज ये तो एक्सप्लेनेशन का स्टेटमेंट है ना. कमिंग टू, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली पता चलता है फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बिकॉज ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पे बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, वैसे तो ये सही है, द यूएसए गवर्नमेंट डेप्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट. ये सही है बिकॉज कोई हार्ड एसेट बैकिंग नहीं रहता है, एक फेथ के ऊपर रहता है. जब भी आप बॉन्ड खरीदते हो, सरकार से भी आप अगर बॉन्ड लेते हो, तो एक फेथ के ऊपर रहता है, ठीक है. इट इज मोस्टली ऑन फेथ. कोई हार्ड एसेट्स, फॉर एग्जांपल हार्ड एसेट्स मीन्स जैसे कि एक गोल्ड हो गया या फिर लैंड हो गया या फिर कोई मशीनरी हो गया, वो सब यूजुअली नहीं रहता है एज अ बैकिंग. So statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. So D is the right option. Now question 32. Again another economic question. Simply we should know what is the meaning of syndicated lending. It's a kind of lending. Okay. न्यूज़ में रहता है, बुक्स में मोस्टली नहीं रहता, लेकिन न्यूज़ में अगर आप पढ़ोगे तो ये करंट अफेयर्स में इधर उधर कहीं पे आ जाता है. सिंडिकेट लेंडिंग. सिंडिकेट लेंडिंग मीन्स ग्रुप ऑफ लेंडर्स मिलके आपको लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप, तो सिंडिकेट बोलते हैं उसको. तो सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स. यस, लेंडर्स आर मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड सिंडिकेटेड लेंडिंग. का मतलब ही होता है व्हेन देयर आर मल्टीपल लेंडर्स. जब आप मल्टीपल लेंडर्स हैं और बोरो जिसको पैसे आपने दिया है, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है, व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट फ्रॉम द बोरोवर साइड, तो कहीं ना कहीं रिस्क तो पड़ेगा ही. तो स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. Coming to the second one, the syndicated loan can be a fixed amount, lump sum funds, but cannot be a credit line. तो ये statement गलत है. Basically, they have taken the statement from internet. Usually, syndicated दो प्रकार का होता है, एक होता है fixed और एक होता है credit. और यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी क्रेडिट. जस्ट सिंपली टुक द सेंटेंस और चेंज करके एग्जाम पे दे हैव पुट इट. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. क्रेडिट लाइन मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपका सैंक्शन होता है, सपोज 100 रुपए का सैंक्शन होता है, तो आप 40 रुपए का लोन भी ले सकते हो, बाद में ले सकते हो. क्रेडिट लाइन उसको बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. Now this is one economic question, again करंट अफेयर्स में है एंड इजी भी है.
ठीक है, करंट अफेयर्स भी है, इजी भी है, न्यूज में भी था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल rupee. It's a sovereign currency issued by RBI in alignment with monetary policy. Correct. It appears on as a liability on RBI's balance sheet. Absolutely correct. It is insured against inflation. No, inflation indexed digital rupee नहीं है। जैसे कि एक इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स रहता है जो कि इन्फ्लेशन के साथ अलाइंड है, ये वो नहीं है। सो 3 इज रॉन्ग। It is freely convertible against commercial bank money and cash. So 1, 2 and 4 are correct. So ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था। You can also guess. Mostly lot of things are not in inflation के साथ इंडेक्स नहीं होता है। Yes, कुछ बॉन्ड्स है जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स है, कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी हैं जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। उनका दूसरा नाम पूछा है। सो यहाँ पे शाक्य मुनि वेरी फेमस, शाक्य मुनि तो है ही। तथागत ऑल्सो वेरी फेमस, वो अपने आप को तथागत बोलते थे। नाउ नायापुट्टा इज नॉट बुद्धा, इट इज जैनिज्म, ये जैनिज्म का है नायापुट्टा, ठीक है। सो आंसर 2 and 3 आर करेक्ट। से बुद्धिज्म और जैनिज्म में 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा आता है, इट्स कॉमन थिंग। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए हमको इतना सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बुक्स यू कैन गो थ्रू, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है। इफ यू नो, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, नायापुट्टा वर्ड आपने शाक्य मुनि तथागत के साथ कभी देखा ही नहीं होगा बुद्धा का, तो यू कैन टेक अ गेस वर्क और कैलकुलेटेड गेस, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35। ओके, क्वेश्चन 35 भी एक हिस्ट्री ओरिएंटेड करंट मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। हम अभी देखेंगे इसको। आर्कियोलॉजिकल साइट दिया है, स्टेट दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, क्यों न्यूज में है या क्यों फेमस है। पहले हमको देख के एक जो है, जो नॉर्मल बेसिक हम सब पढ़ते हैं, इनाम गांव, ठीक है। ये तो महाराष्ट्र है, ये तो चालकलेतिक साइट है, एवरीबडी नोज इट, हमने एंशिएंट में पढ़ा है। सो 2 तो सही है। अगर 2 सही है, सो इधर सिंपली यहाँ से हम देख सकते हैं 2 अगर सही है तो वी कैन कैंसल सी, वी कैन कैंसल डी। ओके, 2 सही है। सो 2 में से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। नाउ वी आर वेरी क्लियर कि 4 सही नहीं है। हालांकि सालिहुंडम इज इन आंध्र प्रदेश, ये सही है, फिर भी ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज रॉक कट केव श्राइन्स नहीं, इट इज फॉर बुद्धिस्ट स्तूपा। अगेन मोस्टली पीपल डू नॉट नो, मतलब एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है सब चीज़, तो फिर भी यू कैन एटलीस्ट टेक अ गेस, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूरा हम छोड़ दें, बिकॉज वी नो समथिंग, राइट। आंसर बन गया, आधा बन गया है। सो 4 को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन बन ही नहीं है। नाउ यू हैव टू चेक बिटवीन 1 and 3, 1 and 3। नाउ हियर यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड गेस। ओके, चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा ट्रेडिंग पोर्ट, तो ये तो बंगाल में है, और चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में है, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर इज मंगाडू ना, मंगाडू न्यूज में है, और ये मेगालिथिक साइट है, रिसेंटली न्यूज में था, ये केरला का है। सो ये करेक्ट है, ठीक है। विल सी सम इंफॉर्मेशन। इफ यू सी हियर मंगाडू, सो मंगाडू में इज एक्सकैवेशन हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है। प्री हिस्टोरिक साइट है, मेगालिथ्स बहुत मिला है यहाँ पे, ये सब मेगालिथ्स मेरा के एरिया में मिलता है। मंगाडू केरला, न्यूली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक वेयर मेगालिथ्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। और हम सबको पता है मेगालिथिक एरा वो 1000 से लगभग 200 100 BC तक है, 300 भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली डेक्कन और डीप साउथ में है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ में भी है, बट मोस्टली इट इज प्रेवलेंट इन दिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आयरन एज ऑफ साउथ इंडिया, आयरन एज ऑफ साउथ इंडिया। नाउ आप जब बुक पढ़ते हो, व्हेन यू रीड बुक, आपको बहुत सारे साइट्स मिलेंगे व्हेन यू रीड मेगालिथिक एरा। अब वहीं पे व्हेन यू रीड मेगालिथिक एरा, यू हैव टू गो एंड सर्च इन इंटरनेट
any site which is recently excavated from that era, and you have to add on in your notes. That is how you have to study history when it comes to this kind of questions can be solved. Okay. यहाँ पे टॉपिकल्स मिलता है, कुडाइकल्स मिलता है, ये सब हमने इफ यू गो थ्रू माय एंशिएंट हिस्ट्री नोट्स, यहाँ पे ऑप्शनल में हम पढ़ते हैं कुडाइकल्स, टॉपिकल्स, ये सब यहाँ पे मिलता है. दीज आर स्पेसिफिक टर्म्स. आज नहीं, अगले साल आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है. कुडाइकल्स, टॉपिकल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेगालिथिक एरा. ठीक है. ओके. फिर चंद्रकेतुगढ़ भी है. चंद्रकेतुगढ़ एक फॉरगेटन बंगाल एम्पायर है. हालांकि न्यूज में तो नहीं था, बट दिस काइंड ऑफ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस दे विल आस्क. ठीक है. लेकिन अगर हम आपको वो चीज पता है, इफ यू नो सिंपल दोज टू ऑप्शंस, देन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड. ओके. इनामगांव और मंगलाडू से हो जाता है. अगर मेगालिथिक एरा आपने पढ़ा होगा और आपने थोड़ा बहुत सर्च किया होगा कि रिसेंट एक्सकावेशन कहीं पे आपको मिला होगा, देन इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 36. हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिएवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड ए फोर्ट एट भक्तकाल. ठीक है. भक्तकाल में कृष्णदेवराय, जब आप इनके डायनेस्टी के बारे में, तुलुवा डायनेस्टी, विजयनगर के बारे में आप पढ़ोगे, सो जब कृष्णदेवराय के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल कम टू योर, आपके पेरीफेरी में आ जाएगा कि हाँ ये सब डिटेल्स यू कैन गो थ्रू. अल्ब्यूकर्क उस टाइम के पोर्तुगीज के गवर्नर थे, या फिर वाइसराय जैसे भी आप बोल सकते हो. उस टाइम पे कृष्णदेवराय. नाउ दिस कंटेंट विल कम व्हेन यू रीड कृष्णदेवराय's टाइम पीरियड एंड व्हाट ही हैज डन. ये आपको पोर्तुगीज के स्टफ में नहीं मिलेगा, हालांकि वहां पे मिलेगा, बिकॉज ये कृष्णदेवराय का एक बहुत बड़ा चीज है, उन्होंने परमिशन दिया था. ठीक है. फाइन. नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू revenue collection by Cornwallis, consider the following statements. Under the Ryotwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest and natural calamities. As far as my information and knowledge goes, ये चीज महालवारी पे था, ये रौतवारी पे नहीं था, ये महालवारी में था. महालवारी, क्योंकि महाल, देखो तीन चीज है, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतियारी एंड महालवारी. ये सब बोला जाता है. इट इज वेरी नोन फैक्ट कि द लीस्ट एक्सप्लॉयटेटिव वाज दिस. इट वाज द लीस्ट एक्सप्लॉयटेटिव तीनों में से. इसीलिए यहां पे अगर आपका नेचुरल कैलेमिटी आ जाता है, बैड हार्वेस्ट आ जाता है, तो पीजेंट्स को देना नहीं पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड. सो ये रॉयल टेरी पे नहीं है, बिकॉज रॉयल टेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट वेरी हार्डकोर. यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट मिला था, सो इट इज महालवारी. अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी. इट्स अ वेरी डिरेक्ट क्वेश्चन. सनसेट क्लॉज बोलते हैं उसको. एक टाइम था, सनसेट से पहले अगर उसी डेट, जो उसको डेट दिया गया होगा, उसी डेट से पहले अगर ही इज नॉट एबल टू गिव दैट अमाउंट, सो विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी और ऑक्शन हो जाता है. So this sunset clause is a very important clause of permanent settlement. So statement 2 is correct. So 2 is correct. Next question. See, this kind of question can be solved very like if you do not know the meaning of parables, then you might be in trouble. See, parables means stories, short stories. Okay. Parables means short stories. So जाहिर सी बात है, शॉर्ट स्टोरीज तो होंगे. इतना सारे उपनिषद है, थोड़ा बहुत स्टोरीज तो रहते हैं. सो देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये रॉन्ग है. पैराबल्स है वहां पे. उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण. यस, ऋग्वेदा, फिर उपनिषद, फिर पुराण, ये उनका क्रोनोलॉजी है. ठीक है. सो उपनिषद were composed earlier than Puranas. और अगर भी आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, so you know कि पुरानास तो मेडिएवल तक हुए थे, 10th century AD तक. कुछ पुरानास जो है इवन टिल 10th century AD टिल ये हुए हैं. उपनिषद बहुत पहले वैदिक के टाइम पे हो गए थे. ठीक है. लेटर वैदिक खास करके. So this statement is correct. So answer is 2 only.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आईआर का क्वेश्चन है. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल. Yes, India is a member of International Grains Council. A country needs to be a member of the International Grains Council for exporting or importing rice, wheat, oil seeds भी add हो गया है. So I'll go with option 1 because oil seeds भी add हो गया है. It is not only for rice and wheat. Now International Grain Council 1949 में हुआ था, फिर 1995 में उसका नाम चेंज हुआ. We'll see the name. इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल. इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल 1949, उसको इंटरनेशनल व्हीट एग्रीमेंट बोलते हैं. फिर उसको रीनेम किया गया बाय द ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन. ये कन्वेंशन का नाम है जहाँ पे सारे कंट्रीज आए थे. 1995, लोकेशन लंदन में है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं ग्रेन्स ट्रेड में, ग्रेन्स के ट्रेड में. और ये देयर मेन वर्क इज टू ब्रिंग प्रॉपर कंपटीशन, फेयरनेस, एक्सपेंशन. लाइक नॉट लाइक फॉर एग्जांपल एक फेयरनेस होना चाहिए, बेसिकली फेयरनेस होना चाहिए सारे एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज दोनों के. ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे. सो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, ईच मेंबर इज डेजिग्नेटेड एज एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बेस्ड ऑन इट्स एवरेज ट्रेड इन ग्रेन्स, राइस एंड ऑयल सीड्स. ठीक है, ग्रेन्स है, राइस है एंड ऑयल सीड्स भी है. इंडिया इज अ मेंबर एंड इंडिया जो मेंबर है तो उसको मॉनिटर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसको मॉनिटर करता है, विच इज द नोडल एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, so here the answer is only one. Direct question, which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? We all know गरबा. Recently गरबा was included. काफी direct question है, न्यूज में था. कुंभ मेला ये सब, छऊ डांस ये सब पहले से है, लेकिन recently गरबा was included. So it's a direct question, easy question. Next statement question है, there is instability and worsening security situation in Sahel region. Sahel region जो अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और थोड़ा बहुत ऊपर के अफ्रीका के एरिया को साहिल रीजन बोलते हैं. यस, इंस्टेबिलिटी तो है ही, बहुत ही एक्सट्रीमिज्म हो रहा है वहाँ पे, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज आ रहे हैं वहाँ पे. इसी में काफी न्यूज में रहता है ये एरिया, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज. स्टेटमेंट टू देयर हैव बीन मिलिटरी टेक ओवर्स और कूप हो रहा है, बहुत सारे कूप्स. रिसेंटली तो 4-5 देश में हुआ है इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहिल रीजन, जैसे कि नाइगर, माली, बुर्किनो फासो, गैबॉन एक्सेट्रा. यहाँ पे सब मिलिट्री कूप्स रिसेंटली हुआ है. 2 साल के अंदर आप देखोगे कहीं ना कहीं हुआ है. तो स्टेटमेंट सही है ना. द क्वेश्चन इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट नाउ यू हैव टू सी वेदर स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनेशन और नॉट. सी, इंस्टेबिलिटी हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी के वजह से, बट रीजन कूप नहीं है. बिकॉज देयर आर मिलिट्री कूप्स हैपनिंग, दैट इज नॉट द रीजन ऑफ हैपनिंग बिकॉज देयर इज इंस्टेबिलिटी. लॉट ऑफ अदर रीजंस आर आल्सो देयर. मिलिट्री कूप एक कंपोनेंट है. ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली. ये इसका कारण नहीं. आप अगर थोड़ा रिवर्स इसको सोचोगे कि ये हो रहा है इसीलिए क्या इंस्टेबिलिटी है, दिस इज हैपनिंग, दिस मिलिट्री कूप इज हैपनिंग, सो इज दिस द रीजन व्हाई देयर इज इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी तो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज की वजह से हो रहा है, एन नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे अलग अलग रीजंस है. ठीक है, सो स्टेटमेंट इज बी, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए. अभी इंपोर्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, न्यूज़ में है. अगर आप ये देखोगे न्यूज़, हिंदू बिजनेस लाइन में न्यूज़ आया था ना, December 23 का न्यूज़ है, December 13, 2023 का न्यूज़ है. यहाँ पे न्यूज़ ये है कि इंपोर्ट बढ़ गया है. इंपोर्ट्स ऑफ यूएस एप्पल्स rise 40 times in 3 months as India scraps retaliatory duty. So ये न्यूज में है तो एप्पल्स बढ़ा है. तो सिंपल ऐसे छोटे छोटे न्यूज आपको
साल में, जो कि नॉर्मल मैगजीन्स में अगर नहीं भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा, सो दैट एक 5 से 10 मार्क का डिफरेंस हो जाता है। ये सब वेरी वेरी स्मॉल करंट अफेयर्स, वेरी स्मॉल करंट अफेयर्स, ये सब क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है, ठीक है। ओके, इवन इफ यू सी द स्टेटमेंट इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए, काफी एक्सट्रीम सेंटेंस भी लग रहा है, यू कैन टेक ए गेस आल्सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन इजी है, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज डन बाय GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्राइजल कमिटी, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्राइजल कमिटी ये करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन। पॉलिटी क्वेश्चन इस बार काफी डायरेक्ट आया है, मतलब अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, थोड़ा हल्का सा बैरेक्ट भी पढ़ोगे तो अराउंड 100%, 95% एक्यूरेसी आ जाएगा, काफी डायरेक्ट आया। लेकिन थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे गलत होने का चांसेस भी है, मतलब बाहर से लग रहा है इजी है लेकिन उतना इजी भी नहीं है। विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Okay, now this is a direct question. This is a direct question from a book with any resolution for the removal of speaker of the Lok Sabha. अगर resolution चल रहा है लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए, तो क्या होगा? He shall not preside. Obviously, president he will not preside the house. So one is correct. Shall not have the right to speak. No, he can have the right to speak. He can take part in हमने वहाँ पे book में पढ़ा था, he can take part in proceedings. So he shall not have right to speak. It is a wrong statement. He shall not be entitled to vote on the resolution in the first. No, ये उल्टा है। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में ही he can vote when the removal का resolution चल रहा है, तब he can vote in the first instance, but he cannot vote in the equality of votes, which is in the case of when he is the speaker. जब वो स्पीकर की पोजीशन में, तब ये इक्वलिटी कास्टिंग वोट बोलते हैं वहां पे, यहाँ पे नहीं है, बिकॉज रिमूवल रिजोल्यूशन चल रहा है इनका, ओके। सो आंसर इज 1 ओनली। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये काफी लैप्सिंग क्वेश्चन इज लैप्सिंग ऑफ बिल्स। मोस्टली स्टूडेंट्स को याद भी नहीं रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अभी भी रिसेंटली क्लास में बोला था, लैप्सिंग ऑफ बिल्स बस एक दिन पहले, आपके एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाना, वैसे क्वेश्चन आने का चांसेस है, और इस बार आया भी है, आता रहता है, हर 2-3 साल में सब क्वेश्चन आता रहता है, ओके। विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लैप्सिंग ऑफ बिल्स, ओके। A bill pending in लोकसभा lapses on its dissolution. अब यहां पे जो स्टेटमेंट है, क्लैरिटी नहीं है, ओरिजिन कहां पे हुआ है, कितना पास हुआ है, राज्यसभा से ओरिजिन हुआ है, पास हुआ है, या लोकसभा में ओरिजिन हुआ है या पास हुआ है, या कितना, कुछ क्लैरिटी नहीं है इस स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट, बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एब्सोल्युटली करेक्ट, डायरेक्ट है, ठीक है। नाउ कौन सा बिल लैप्स नहीं करता, ये उसी चीज का एक पॉइंट है। अ बिल इन रिगार्ड टू व्हिच प्रेसिडेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया है उसका इंटेंशन, इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउसेस टू अ जॉइंट सिटिंग, नाउ इट लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो यहां पे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज प्रेसिडेंट अगर नोटिफाई किया है वो लैप्स नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा। सो here the answer will be 3 is a wrong statement. Okay, 2 and 3 I've done, it's a wrong statement. 3 is wrong, 3 is wrong. So 1 and 2, yes, 1 and 2, bill pending in Lok Sabha lapses on its dissolution. अब क्लैरिटी नहीं है, बेसिकली क्लैरिटी नहीं है, बट अगेन ऑप्शन अगर देखोगे तो ओनली 2 का ऑप्शन नहीं है। बट इफ यू सी ओनली दिस, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन, जब आप पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे, वहां पे लैप्सिंग का जो 4 पॉइंट दिया है, वहां पे कंडीशन दिया है कि अगर यहाँ पे है, पास हुआ है या ओरिजिन, कुछ तो कुछ लिखना होता, पर यहाँ पे नहीं लिखा है, इट्स ओके, बट द आंसर विल बी 1 and 2,
because a bill in this regard to which president has notified to someone, ये लैप्स नहीं करता है, डिसोल्यूशन से लैप अगर उसने नोटिफाई कर दिया है तो 3 तो गलत है एंड 2 सही है, सो ऑब्वियसली इट विल बी 1 and 2 बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं. ओके ओके 45 क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Prorogation of a house by president does not require the advice of council of ministers. अब ये क्वेश्चन में काफ़ी कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, ग्रेजुअली हम करेंगे इसको. पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. सेकंड, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड साइंड बाय, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस व्हिच इज इन द सेशन. ओके. डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु, save in exceptional circumstances, does so on the advice of the council of ministers. Okay, now the question comes. ये सब आर्टिकल में लिखा है, लेकिन द पॉइंट इज थोड़ा डिटेल प्रोसेस के बारे में पूछा है, जो अगर मतलब ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं जितना आपको दिख रहा है. सो प्रोरोगेशन, बेसिकली प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट तो करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ किसका? एडवाइस ऑफ पीएम. क्वेश्चन हमेशा है पीएम and council of ministers. यहां पे does not require the advice of council of minister. yes, council of ministers का require नहीं, लेकिन PM का require करता है. ठीक है, so statement 1 is correct because does not लिखा है. I'll show you the official thing now. Let me cover this. I'll show you the official thing जहां पे सब चीज लिखा है. Prorogation of a house is generally done after the house is adjourned, signed by, but there is no bar. ये कुछ ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है. दिस यू कैन गेस. सो 2 तो करेक्ट है, तो बी एंड सी. सो हियर इफ यू नो दिस स्टेटमेंट, सो योर ऑप्शन ए इज गॉन, ऑप्शन डी इज गॉन. नाउ यू हैव टू गो विथ बी एंड सी. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. रिसेंटली लोकसभा डिसॉल्व हुआ है, रिसेंटली अभी लोकसभा डिसॉल्व हुआ है, इलेक्शन हुआ है. सो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. हु in exceptional circumstances does so on the advice of council of ministers. Now this is a wrong statement. It is the cabinet. It is the cabinet, not the council of ministers. First of all, statement 3. If you see here, President Murmu news में है, अभी this time ये हुआ है, President Murmu dissolved the 17th Lok Sabha on the advice of cabinet. ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है. सो अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट वीक का ही ये न्यूज है ऑन द कैबिनेट. फाइन, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में होता है. ओके, अभी हम इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक्चुअली प्रोसेस क्या है. पहले प्रोसेस देख लेते हैं, फिर अगेन विल कम टू दिस क्वेश्चन. ओके, प्रोरोगेशन अगर हम देखेंगे, समनिंग का क्वेश्चन नहीं है, हम डायरेक्ट प्रोरोगेशन में चलते हैं. तो दिस इज अ गवर्नमेंट साइट. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का साइट का इंफॉर्मेशन है. ओके, प्रोरोगेशन में अगर आप देखोगे, अभी प्रोरोगेशन में अगर देखोगे आप ध्यान से देखिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग होता है, और रिक्विजिट ऑथोरिटी फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एक नोट जाएगा, एक नोट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स से नोट जाएगा प्रेसिडेंट को, कंटेनिंग द प्रपोजल की प्रोरोग करना है, approved by the cabinet. Now do not say कि cabinet is equivalent to council of ministers. No, both are separate. Cabinet submitted